Okay, so guys, remember this is going to be our last lecture. Okay, इसके बाद में कोई हम लोगों का अभी आज लेक्चर नहीं होगा. इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो वो एक डाउट सॉल्विंग सेशन होगा. बट अभी कोई साइबर लॉ का अलग से कोई दूसरा लेक्चर नहीं होगा. सो अगर आपको रिक्वायर्ड होगा फॉर डाउट सॉल्विंग जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके स्पेसिफिक, देन ओनली विल टेक अ लेक्चर. अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लेक्चर यूनिट 5 का. सो एज यू कैन सी यूनिट 5 में लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग अबाउट मैनी थिंग्स. ओके, सो हम लोगों ने यहाँ पे वी वर डिस्कस्ड अबाउट इंडियन एविडेंस एक्ट, जहाँ पे हम लोग डिजिटल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको भी एज अ एविडेंस हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड हियर, राइट, इफ यू रिमेंबर. सो वही सेम पॉइंट अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे. ओके, आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट कि हम लोगों ने इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो स्टार्ट किया था. सो दैट इज व्हाट विल कंटिन्यू नाउ. सो फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट रेलिवेंस एंड एडमिसिबिलिटी. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि जो हम लोग डिजिटल एविडेंस अगर सबमिट करेंगे तो उसका रेलिवेंस होना चाहिए एंड इट शुड बी एडमिसिबल, मतलब लीगली इट शुड अलाउ कि कोर्ट उसको माने. सो as per the section 65B as it is given here, the computer outputs are admissible. Now it is admissible, remember, है ना, after amending Indian Evidence Act with respect to IT Act 2000. Now this computer outputs are admissible, but we have to prove the evidence also. Evidence may be given in any lawsuit जो हम लोग फाइल करेंगे, any कोर्ट के प्रोसीडिंग्स जो चल रहा है. सो यहाँ पे आपको प्रूफ करना है दैट दिस इज समथिंग विच इज एडमिसिबल. Section 3 says facts in issues means include any facts from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature, extent of any right. एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है वो समझते हैं, आपको बेटर समझेगा. ऊपर वाले जो स्टेटमेंट्स है क्या बोला है, A is accused of a murder of B. Now at his trial facts may be like A caused B's death, then A intends to cause B's death, and A has received a grave and sudden provocation from B, from social media, from through email, some video call or any such thing. ये आपको यहाँ पे बताना है. सेम वे यहाँ पे अगर आप देखेंगे what we have written here is that A at a time of doing this act which caused B's death, was by the reason of unsoundness of the mind, incapable of knowing it. The fact is said to relevant to another one. The one is connected with other in case of ways referred to the provision. In short, we are talking about we have some mobile location जहाँ पे A और B present थे. We have some another location. We have some bank statement जहाँ पे कोई money transaction हुआ है, जहाँ पे I can refer कि okay B is threatening A, जहाँ पे वो उससे कोई ransom amount मांग रहा था या वो उसको blackmail कर रहा था. He might be having some MMS or something, है ना. So ये कोई भी points हो सकता है. So as you can see now ये जो provisions है वो हम लोगों ने कहाँ पे कवर किए हैं, under the IT Act. Two new sections were introduced for the relevancy. They are 22A and 47A. Now 22A, when oral admission as to content of electronic records are relevant. oral का मतलब आके कोई statement देता है. अब उस वो ही oral content जो है इसको मैं electronic records भी बता सकता हूँ. Means someone who is not present here, है ना. So यहाँ पे क्या बोला है, oral admission as to the content of electronic records are not relevant unless the genuineness of electronic record produced is in the question. मतलब we have a video, recorded video,
So we supposed to prove we have वीडियो टेस्टिंग लैब्स. ओके, गवर्नमेंट के वीडियो टेस्टिंग लैब्स होते हैं. नाउ दे विल फर्स्ट चेक कि ये जो वीडियो है ये एक मॉडिफाइड या फिर अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करके एक कंप्लीट बनाया हुआ वीडियो तो नहीं है. वी सपोज टू वेरीफाई दैट. आपको गवर्नमेंट के जो टेस्टिंग लैब्स है वहां से जब अगर सर्टिफिकेट मिलेगा देन ओनली दिस वीडियो फुटेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, whatever that electronic record might be, ठीक है, that is admissible in the court. आप आके कोई भी वीडियो नहीं बता सकते. now that video might be a modified or tempered one. so as per section 22 आप जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बताएंगे वो तब तक एडमिसिबल नहीं रहेंगे जब तक उसका जेन्यूननेस प्रूव नहीं होता है. एंड टू प्रूव द जेन्यूननेस वी हैव टू टेक अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ टेस्टिंग लैब. सो जैसे हम लोग के ब्लड टेस्ट रहते हैं वैसे ही वी हैव फॉर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ऑफ डिफरेंट टाइप वी हैव सच टेस्टिंग लैब्स प्रेजेंट. उसके आगे इफ यू नोटिस द नेक्स्ट वन वी हैव सेक्शन 47A. नाउ ओपिनियन एज टू अ डिजिटल सिग्नेचर. व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म अ ओपिनियन एज टू द डिजिटल सिग्नेचर ऑफ एनी पर्सन, द ओपिनियन ऑफ CA मतलब डिजिटल सिग्नेचर जेन्यून है नहीं है या उसके अगेंस्ट या उसके बिहाफ में अगर कुछ ओपिनियन बनाना है तो सीए के साइड से क्या आंसर आ रहा है ये बहुत जरूरी है समझना. तो सीए के साइड से जो आंसर आएगा बेस्ड ऑन दैट कोर्ट विल टेक और डिसाइड देयर ओपिनियन. सो सीए के साइड से फाइनल आंसर मिलना बहुत जरूरी है ना, जिसने उसको ये डिजिटल सिग्नेचर या सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया था. According to section 47, when a court has to form an opinion as to whom person any document was written or signed, तो वो टाइम पे क्या होगा, हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के बेस के ऊपर विल टेक द हेल्प ऑफ सीए, जिसके पास से हम लोग देखेंगे कि ओके दिस इज द डॉक्यूमेंट, दिस इज द सिग्नेचर विच इज प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस सीए, और उसके साथ हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये जो भी सिग्नेचर है ये सर्टिफिकेट के साथ लिंक्ड है, वो सर्टिफिकेट जेन्यून है, और अगर जेन्यून है तो अभी तक वैलिड है क्या, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे. देन नेक्स्ट इज रेलिवेंस फॉर बिजनेस कम्युनिटी. अब यहाँ पे क्या बोला है, रेलिवेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी इज गिवन इन सेक्शन 16, 32 एंड 34. ये पैरा 2 आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, हम लोग को याद रखना है, उसके सेक्शंस याद रखना है, बिकॉज ये एक बहुत बड़े रेफरेंस बुक में से ये नोट्स बनाया हुआ है. तो अगर आप देखेंगे कि ये इतना डिटेल में हम लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ अ कोर्स ऑफ अ बिजनेस व्हेन रेलिवेंट, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन और नॉट. तो वो टाइम पे हम लोग को क्या करना है, द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड और नॉट. The fact that it was ordinary course of business for a letters put in a certain place to be carried out to post and that particular letter was put in a place are relevant or not. So कोई एक लेटर अगर हम लोगों ने दिया हुआ है ना, तो वो लेटर काम का है नहीं है, मैंने ही भेजा हुआ है या नहीं है. जैसे इफ आई से कि मैंने आपको एक लेटर भेजा है बाय कुरियर और आपने रिसीव करके एक्नॉलेज करके सेंड किया है, सो दैट इज द प्रूफ कि आपको वो लेटर रिसीव हुआ है. द क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए और नॉट, अगर नहीं हुआ है तो वो उसको हम लोग डेड लेटर ऑफिस पे जाके चेक करेंगे, है ना. रिटर्न अगर हुआ है तो उसको हम लोग डेड लेटर कंसिडर करेंगे. ऑथरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया क्या पॉइंट पे हम लोग बात कर रहे हैं. इसके बाद में इफ यू नोटिस हियर हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट पे बात कर रहे हैं दैट इज द ऑथरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. Now, after the admissibility and relevance of computer output, next step is to prove the authorship of electronic records. Now, as per the section 65B, author of electronic records, क्या बोला हुआ है, is a person who may give the certificate. Now, the person who has official position in relation to the operation of the computer or management of activity regularly carried out during the period when computer was regularly stored. मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ऑथरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसका वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ये कैसे कंसिडर होगा. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये कंप्यूटर जिसके ऊपर ये रिकॉर्ड मिला हुआ है उस पे
जो टाइम पे ये रिकॉर्ड बने थे वो टाइम पे एम्प्लॉय ABC इस पे काम कर रहा था, दैट मीन्स ही इज द ऑथर, बिकॉज कंपनी में एक कंप्यूटर पे मल्टीपल पीपल माइट बी वर्किंग ऑन द सेम कंप्यूटर, है ना। तो वो यहाँ पे देखना, द नॉर्मल मेथड ऑफ प्रूविंग अ डॉक्यूमेंट इज कॉलिंग बाय द विटनेस द पर्सन हु हैड एग्जीक्यूटेड और साइन or who is qualified or competent to express his opinion like network administrator or someone else, है ना। उसके आगे क्या बोला है, person who executed the electronic record or who saw it being executed or who is otherwise familiar with the execution would be required to prove the execution. Okay, next क्या बोला है, probative value of electronic evidence. Now probative value of electronic evidence is the weight to be given to it which has to be judged having regard to the fact and circumstances of the case, like the nature of the computer generated evidences. like अभी आपके कंप्यूटर के generated evidences 5 टाइप के होते हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसमें से कौन से बेसिस पे एडमिसिबल रहेंगे वो भी देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल वन इज ओरल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. सर्कमस्टेंशियल मतलब हम लोगों के पास सीसीटीवी कैमरा नहीं था, लेकिन जहाँ पे इंसिडेंट हुआ उसके बाजू में सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिल गया, सो दैट इज द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. ओके, देन डायरेक्ट एविडेंस हो सकते हैं, कोई रियल एविडेंस हो सकता है. सो अलग अलग टाइप के हम लोग एविडेंस देखते हैं. So first we'll go with oral evidence. So what we mean by oral evidence? As you can see, as per the section 60 of Indian Evidence Act, ये जो भी sections हम लोग पढ़ रहे हैं ना उसका प्लीज एक टेबल बना के रखना. MCQs में यही टेबल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, याद रखना. So section 60 of Indian Evidence Act prescribes provision of recording oral evidence. मतलब आप ओरल एविडेंस जो है वो एडमिसिबल हो सकता है ना, ये हम लोग बता रहे हैं यहाँ पे. देन उसके आगे अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्या बोला है, ऑल दोज स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट्स और एक्सपेक्ट्स द विटनेस टू मेक इन हिज प्रेजेंस रिगार्डिंग द ट्रूथ और अ फैक्ट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस. I hope I am audible. Hello. Hello. Hello guys. Am I audible? Hello. Yeah. Okay. बीच में सिग्नल ड्रॉप हुआ था क्या? नहीं ना? Okay. So we'll continue. ठीक है. We'll continue. So यहाँ पे देखो ओरल एविडेंस क्या बोला हुआ है, ओरल एविडेंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कि जहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑल दो स्टेटमेंट विच कोर्ट परमिट्स, लाइक इफ यू नो कि हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि पुलिस कस्टडी में अगर कोई एक क्रिमिनल अगर पुलिस को अगर कोई स्टेटमेंट देता है दैट इज नॉट एडमिसिबल, वो कोर्ट परमिट नहीं करता, बिकॉज एक कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में तो वो टाइम पे पुलिस जो है वो 3rd डिग्री टॉर्चर देके भी कोई एक स्टेटमेंट जो है वो कोई क्रिमिनल के पास बुला सकता है. सो वो जो है पुलिस को दिया हुआ स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं रहेगा, वो कोर्ट परमिट नहीं करता है. या फिर कोई अनसाउंड माइंड रहेगा, अनसाउंड माइंड समझता है, जो फिजिकली चैलेंज, जो मेंटली स्टेबल नहीं है पर्सन, फिजिकली नहीं मेंटली स्टेबल नहीं है, उनका भी स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं रहेगा. जैसे बहुत सारे बड़े होने के बाद भी उनका माइंड बच्चों जैसा रहता है, तो उनको कोई भी बहुत इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, तो उन्होंने दिए हुए स्टेटमेंट भी इजीली एडमिसिबल नहीं रहेंगे, है ना. सो एक्सपेक्ट द विटनेसेस टू मेक इन हिज प्रेजेंस रिगार्डिंग द ट्रूथ और अ फैक्ट आर कॉल्ड ओरल एविडेंस. इज द एविडेंस, ओरल एविडेंस मतलब जहाँ पे विटनेस हैज पर्सनली सीन और हर्ड समथिंग, जैसे कोई एक क्राइम होते हुए किसी ने देखा है ना, आई विटनेस जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो आके अपना स्टेटमेंट देंगे कोर्ट में. डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, एज द नेम सजेस्ट डॉक्यूमेंट्री, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, दैट ऑल दोज डॉक्यूमेंट विच आर प्रेजेंटेड इन द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. जैसे अगर मैंने बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है कोर्ट में तो वो क्या होगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा. सिंपल है. सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जैसे यहाँ पे आपको क्या बोला है,
द कुकी मॉन्स्टर फाउंड स्टैंडिंग बाय ओपन कुकी जार व्हेन द कुकी, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके हम लोगों ने वो पुराने बॉलीवुड हिंदी मूवी में देखा था ना कि कोई दूसरा चाकू मार के चले जाता है, हीरो आता है उसको बचाने के बदले चाकू बाहर निकालेगा और वो टाइम पे पुलिस आके पकड़ लेगा। बस वही है कि अभी चाकू इसके हाथ में देखा था तो इसने मर्डर किया कि नहीं पता नहीं है, लेकिन इसके हाथ में चाकू है, फिंगरप्रिंट आ गया, मतलब उसने खून किया हुआ है ना। तो बस वही है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कि हम लोगों के बॉलीवुड के जो पहले के हीरो थे वो बहुत स्मार्ट थे कि कोई मर रहा है तो वो अभी मर गया है तो भी चाकू निकालेंगे, अपना फिंगरप्रिंट देंगे, फिर पुलिस आके पकड़ेगा और बाद में पूरी पिक्चर में वो अपने को खुद को प्रूव करेंगे कि भाई उसने खून नहीं किया है, फिर वो पूरा पिक्चर उसी में घूमेगा। सो उसको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बोलते हैं, बेवकूफ़ी वाले। सो ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी हो जाता है कि मेरे नसीब खराब कि मैं वहाँ पे प्रेजेंट था और उसकी वजह से सर्कमस्टेंस ऐसे बने कि नाउ द क्राइम इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स मी कि मैंने वो क्राइम किया हुआ हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस बहुत सिंपल है। कोई आई विटनेस है जिसने देखा हुआ है कि हाँ मैंने मर्डर किया या मैंने कोई क्राइम किया। रियल एविडेंस का मतलब होता है फिजिकल एविडेंस, लाइक द कुकी जार विद द कुकी मॉन्स्टर फिंगरप्रिंट्स है उस पर, है ना, तो उसके फिंगरप्रिंट है, ये आपके फिजिकल या रियल एविडेंस हो गया। सो वो आपका ये रियल एविडेंस उसको कंसिडर करेंगे हम लोग। डीएनए सैंपल, ब्लड सैंपल मिला हुआ है, हेयर सैंपल मिला हुआ है, लोगों ने मैच करके ट्राई किया, स्किन सैंपल मिला हुआ है, या रेप अगर हुआ है तो उसके रिलेटेड कुछ सैंपल्स मिले हुए हैं, है ना, ये सारे रहेंगे। नाउ cases in which statement of relevant facts by the person who is dead or cannot be found etc is relevant। so यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है कि जहाँ पे किसी का डेथ हो गया है तो वो बंदा आके तो नहीं बोल सकता किसने उसको मारा हुआ है, या कोई पर्सन मिसिंग है, किडनैप हो गया है या वो अभी तक मिल ही नहीं रहा है तो वो पर्सन भी आके नहीं बोल सकता है कि किसने उसके साथ किया। सो व्हेन इट रिलेट्स टू अ कॉज ऑफ डेथ, though when statement is made by a person as a cause of his death or as to any circumstance of a transaction which results in his death, तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि XYZ ये पर्सन के अकाउंट से इतना पैसा इसके अकाउंट में गया और उसके बाद इसका डेथ हुआ, सो आई कैन से कि ओके उसके मर्डर के लिए इसने पैसा पे किया था उसको, है ना। नाउ सच स्टेटमेंट्स आर रेलिवेंट वेदर अ पर्सन हु हैज मेड who made them was or was not at the time when there were some expectation of death जो थे वो चल रहे थे, तो वो टाइम पे कौन सा पर्सन वहाँ प्रेजेंट था नहीं था, उसका मोबाइल लोकेशन हम लोग वेरीफाई करेंगे। एंड कॉज ऑफ डेथ ये बहुत जरूरी है, तो कॉज ऑफ डेथ जो है वो क्या था। अब मैं बोल रहा हूँ कि कॉज ऑफ डेथ जो है वो सपोज हार्ट अटैक आना था या धमकी देना था, तो वो भी हम लोग वेरीफाई करेंगे कि वो किसने दिया हुआ हो सकता है। एंट्रीज इन बुक, अकाउंट बुक, अब ये देखो ये जो है ये तो बहुत इजीली मॉडिफाई हो सकता है। सो हम लोग अगर कोई ऑफिस के बुक्स बात कर रहे हैं जिसपे सबका एक्सेस नहीं है, या जब अगर कभी कोई भी अगर उसको एक्सेस करता है तो अंडर ऑब्जर्वेशन ही होगा और वहाँ पे सीसीटीवी भी लगा है। सो वेन एवर दे रिफर टू अ मैटर इन अ कोर्ट हैज टू इंक्वायर बट सच स्टेटमेंट शेल नॉट अलोन बी सफिशिएंट एविडेंस टू चार्ज एनी पर्सन विद द लाइबिलिटी। सो यहाँ पे क्या बोला है, ए ने केस फाइल किया फॉर बी कि उसने 1000 रुपीज जो है वो उसका अकाउंट बुक में एंट्री बता रहा है ना, और वो उसने वापस नहीं किया। द एंट्री आर रेलिवेंट बट आर नॉट सफिशिएंट, क्योंकि ऐसा बिल बुक जो है उसमें कोई भी आके फॉल्स एंट्री भी कर सकता है ना, उसको छोड़ के अगर और कोई एविडेंस नहीं है तो वो टाइम पे हम लोग नहीं बोल सकते कि ओके ए ने बी के पास से 1000 रुपया लोन लिया था। बैंक आज के टाइम पे अगर आपको लोन देता है तो वो क्या करता है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन होता है, सो जिससे एक प्रूफ रहता है कि हाँ ये पैसा आपको मिला हुआ है। प्रूविंग डिजिटल सिग्नेचर बहुत सिंपल है, ये तो अभी इसको अब लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इंडियन एविडेंस एक्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, जितना वैल्यू हम लोगों ने फिजिकल सिग्नेचर को दिया हुआ है उतना ही वैल्यू हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को भी देते हैं। तो एज पर सेक्शन 73A, proof as a verification of digital signature in order to ascertain whether a digital signature is that of a person by whom it purports has been affixed, so that a person or a controller or CA, CCA or CA to produce a digital signature certificate, है ना, और वो सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है उसके ऊपर जो सिग्नेचर आपको मिला हुआ है
वो यूज करके ही आप अपना आगे का बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं. सो दैट टाइम वी कैन से कि दिस सिग्नेचर एंड दिस थिंग्स आर वैलिड हियर. आई होप दिस इज क्लियर. देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे एनी अदर पर्सन who apply to a public key listed in a digital signature and verify the digital signature has been affixed by that person. किसने लिया था, किसको दिया था, और जिसको दिया वो पर्सन जेन्यून है कि नहीं, ये भी हम लोग वेरीफाई करेंगे. क्लियर है? सो दैट इज ऑल्सो टू बी वेरीफाइड हियर. नाउ यहाँ पे आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. एज यू कैन सी, फॉर द पर्पज अ कंट्रोलर, कंट्रोलर कौन रहता है? सीए का कंट्रोलर है. कंट्रोलर अपॉइंटेड अंडर सब सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 17 ऑफ आईटी एक्ट. हम लोगों ने क्या बोला था? सीए और सीसीए के मेन रोल्स जो है आपको सेक्शन 17 से 34 के बीच में मिलते हैं. याद है? 17 2 34. सो व्हेन अ कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन कि डिजिटल सिग्नेचर किसका है नहीं है, या वो डिजिटल सिग्नेचर जेन्यून है या नहीं है, तो वो टाइम पे सीए के पास से एक ऑथोरिटी रिपोर्ट आना या सीए के पास से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बहुत जरूरी रहता है, जहां पे वो बताएगा कि हाँ ये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो है मैंने XYZ पर्सन को ये डेट पे असाइन किया हुआ था और ये डेट से ये डेट पे वो वैलिड है. ठीक है? सो वो सेक्शन 47A के हिसाब से रेलिवेंट प्रूव होगा. जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल, इफ बी हैज फाइल्ड अ केस अगेंस्ट ए रिलाइज अपॉन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. बराबर है? ए ने क्या बोला कि भाई मुझे यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ईमेल कुछ तो मिला हुआ है. अब वहां पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर है ना. अब बी बोल रहा है कि भाई ये सिग्नेचर मेरा नहीं है. सो अब इफ इट वांट्स टू प्रूव हिज डिजिटल सिग्नेचर देन ही हैज टू प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट हिज डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दैट स्टेट्स public key and request the court to direct any person to apply that public key upon the said electronic record. A also has to prove कि ये जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है वो उसी का है या उसी को इश्यू हुआ है, और उसके लिए उसको किसका परमिशन या किसका ऑथोरिटी लेटर लगेगा? सीए का. आई होप दिस इज क्लियर. So it reiterate that the court authority in order to ascertain whether a digital signature is that a person by whom is it has been affixed. बराबर है? That a person or the controller or a CA to produce a digital signature certificate or any other person to apply the public key, और उसको वो सर्टिफिकेट मिला था, ये प्रूफ करना पड़ेगा. That's what it is written here. Now next जो है, next क्या है? Next is securing digital signature. अब सिक्योरिंग डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या है? अगर हम लोग देखें सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टू सिक्योर अ डिजिटल सिग्नेचर अ सिक्योरिटी प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. जो पार्टी को ये डिजिटल सिग्नेचर मिला हुआ है, इट शुड बी यूनिक टू सब्सक्राइबर एंड इट्स कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग सच सब्सक्राइबर. तो आपका डिजिटल सिग्नेचर जो है इट्स गोइंग टू बी अ यूनिक आईडी. ओके, जो हर एक सब्सक्राइबर के लिए अलग रहेगा. किसी दो सब्सक्राइबर के यूनिक आईडी सेम नहीं रहेंगे. नाउ इट क्रिएटेड इन अ मैनर और यूजिंग अ मींस अंडर अ एक्सक्लूसिव कंट्रोल ऑफ अ सब्सक्राइबर. मतलब उसी के पास रहेंगे, उसको छोड़ के और किसी के पास ये नहीं हो सकते. सॉरी. और जिसके पास ये रहेंगे उसको बहुत प्रॉपरली उसको सिक्योर रखना पड़ेगा. बस वही है. तो अगर उसने प्रॉपर सिक्योरिटी स्टेप्स अगर फॉलो नहीं किए और किसी ने अगर उसका सिग्नेचर मिसयूज किया देन ही इज ओनली रिस्पॉन्सिबल. ठीक है? देन नेक्स्ट इज प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स जो है ये बैकबोन है. इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स कैसे होते हैं? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा, सामने वाले पर्सन के पास सर्टिफिकेट रहेगा, है ना. तो उसके बेस के ऊपर आप इलेक्ट्रॉनिक जो अग्रीमेंट है वो फुलफिल होगा. सो एज यू कैन सी इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट्स आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सो अ लीगल प्रिंसिपल ऑफ एडमिसिबिलिटी, रेलिवेंस एंड कंप्लायंस as per section 65B for admitting computer outputs as a evidence of electronic record. यहाँ पे आपको क्या बोला है? हम लोग के पास एक प्रूफ होना चाहिए. प्रूफ ऑफ डिजिटल सिग्नेचर shall also apply on electronic agreement or on electronic messages, जिससे प्रूव होगा वैलिडिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक मैसेज और अ डॉक्यूमेंट कि दिस डॉक्यूमेंट और दिस सिग्नेचर बिलोंग्स टू यू ओनली, है ना. लाइक वी हैव इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट जिसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर है.
जो पर्सन ने वो अग्रीमेंट एक्सेप्ट किया हुआ है, या फिर दोनों पार्टीज का होगा, सॉरी बोथ द पार्टीज, बराबर है, बोथ पार्टीज या मोर देन टू पार्टीज उनके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रहेंगे, दैट इज ऑन ई अग्रीमेंट. ई अग्रीमेंट टू ईमेल मैसेजेस. सो वो टाइम पे क्या होगा, विद डिजिटल सिग्नेचर ऑफ पार्टी सेंडिंग द मैसेजेस. तो अभी आपने क्या किया, ई अग्रीमेंट जो है वो ईमेल पे सेंड रिसीव किया हुआ है. तो आप जब ये अग्रीमेंट को सेंड या रिसीव करेंगे, वो टाइम पे जो जो पार्टी ने ये अग्रीमेंट सेंड और रिसीव किए हुए हैं उनके सिग्नेचर्स रहेंगे, बराबर है ना. और विदाउट सिग्नेचर अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक ये ईमेल पे कम्युनिकेशन हुआ है तो उसको मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा. हाँ, लेकिन वी कैन प्रूव दैट कि ये जो मैसेजेस आए हुए हैं ये आपके ईमेल आईडी से ही आया है, दैट मींस यू आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, आप अगर बोलोगे कि नहीं मेरा ईमेल आईडी किसी ने मिसयूज किया हुआ है, सो इट मींस इट्स योर फॉल्ट कि आपने अपने ईमेल आईडी को सिक्योर नहीं रखा या टाइम टू टाइम उसका पासवर्ड चेंज नहीं किया. सो एज पर द सेक्शन 85 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या क्या चीजें रहेंगे. तो फर्स्ट, इफ यू नोटिस, वी हैव सेक्शन 85A. So as per the section, the court shall presume that every electronic record जो रहेंगे to be an agreement containing a digital signature of the party was concluded by affixing digital signature of the party. तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है उसका ऑथोरिटी, उसका इंटीग्रिटी प्रूव करने के लिए आपको वहां पे उस पे डिजिटल सिग्नेचर बताना पड़ेगा कि ओके ये XYZ पर्सन का ये सिग्नेचर है, सो दैट मींस दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल. देन द वर्ड shall presume, sorry, shall मतलब compulsory, presume unless the contrary is proved are missing. So आपको क्या करना है, जो पर्सन है उसका सिग्नेचर जो है वो अगर वहां पे रहेगा कंपलसरी, देन ओनली वो इलेक्ट्रॉनिक अग्रीमेंट को हम लोग वैलिड कंसिडर करेंगे. या फिर हम लोग बोलेंगे कि जो कॉन्ट्रारी पार्टी है वो मिसिंग है, अभी वो अभी पिक्चर में ही नहीं आ रहा है क्योंकि उसने फ्रॉड किया है ना. लेकिन हम लोगों को ये सब बताना है और जब तक ये प्रूव नहीं होता तब तक कोई कंक्लूजन पे हम लोग नहीं पहुंच सकते. तो अगर सेकेंड पार्टी अगर मिसिंग है और उसका सिग्नेचर वहां पे प्रेजेंट है, so which suggests that the burden lies upon the person who dispute the presumption to prove that the agreement was not concluded. Affixation of a digital signature shall presume expression. मतलब अगर मेरा ही सिग्नेचर है उस पे और सेकेंड पार्टी ने उसको साइन ही नहीं किया और हम लोगों का बिजनेस सपोज कंटिन्यू हो गया, है ना. सो वो टाइम पे जैसे ही बिजनेस कंटिन्यू हुआ और अगर कुछ डिस्प्यूट हुआ तो मैं जाके केस फाइल करके ये नहीं बोल सकता कि ये पर्सन ने साइन नहीं किया और हम लोगों का बिजनेस कंटिन्यू हो गया. जब तक उस पे मैं ये प्रूव नहीं करता हूं कि उसका वो भी पार्टी है यहाँ पे या उसका सिग्नेचर आना चाहिए, तब तक आगे कोई केस नहीं हो सकता. क्लियर है. जैसे अगर मैंने किसी को डेटा भेजा, डेटाबेस से डेटा सेंड किया, अब उसने ये डेटा का एक्नॉलेजमेंट मुझे अगर नहीं भेजा तो आई कैन नॉट प्रूव कि ये डेटा उसको रिसीव हुआ है ओवर ईमेल, और वो डेटा अगर वो मिसयूज करे तो भी मेरे पास कोई वे नहीं है टू प्रूव कि उसने ये डेटा मिसयूज किया. मेरे पास रिटर्न प्रूफ क्या होना चाहिए कि उसको एक्नॉलेजमेंट मिला है वो. नेक्स्ट इज प्रूविंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेजेस. अब इलेक्ट्रॉनिक मैसेज प्रूव करने का मतलब क्या है. अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या बोला हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ऑफ मैसेजेस जो है ये आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, जैसे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं. सो मेनी पीपल आर यूजिंग ईमेल, व्हाट्सएप, है ना, या ईमेल मैसेजेस. आप ऑफिशियली अगर देखेंगे तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो होता है वो ईमेल पे होता है कंपनीज में आज के टाइम पे, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को टैग करते हैं. ईमेल में एक दूसरे को सीसी रखेंगे या ब्लाइंड BCC रखेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी रखेंगे, है ना. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिजिटल सिग्नेचर एनहांस द क्रेडिबिलिटी ऑफ ईमेल मैसेजेस. कभी कभी अगर आपको क्रेडिबिलिटी अगर बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे यूजिंग असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी. असिमेट्रिक का मतलब है पब्लिक की इज यूज्ड फॉर एनक्रिप्शन एंड प्राइवेट की इज यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन, बराबर है ना. ये पैटर्न जो है वो फॉलो होगा जहां पे हम लोग ऐसे डिजिटल सिग्नेचर ऐड करेंगे as per the IT Act. Now digital signature is used to identify the signatory and grant integrity to the data. Reception 12 of IT Act gives the information about acknowledgement of receipt of an electronic record is issued for the identification of originator and their address and of sending and receiving the messages. So I hope this is very clear. Then we have section 12 acknowledgement of receipt.
ओके, सो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, हाँ लिंक કેટલા કે નીચે so as you can see acknowledgement receipt है. acknowledgement receipt जो है that is also very important as per the section 12 when originator has not stipulated that the acknowledgement of the receipt of electronic record be given in a particular form or by a particular method. acknowledgement may be given as a communication by addressee automated. अब देखो अगर ऑटोमेटेड ईमेल है जिसको आपको रिप्लाई नहीं करना है, आपने देखा रहेगा बहुत बार कंपनीज के साइड से ऑटोमेटिक ईमेल जनरेट होता है जहां पे आपको लिखा रहेगा डू नॉट रिप्लाई टू दिस मैसेज और ईमेल, तो वो टाइम पे एक्नॉलेजमेंट आ ही नहीं रहा है. सो बाय डिफॉल्ट जैसे कंपनीज के साइड से जो मोबाइल बिल्स या कोई दूसरे बिल्स जो जनरेट होते हैं आपको सेंड होते हैं, सो दोज आर कमिंग बाय ऑटोमेटिक रूट. तो वो टाइम पे वहां पे इफ यू नोटिस कि आपको कोई भी उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल सकता. अगर इंडिविजुअल कोई फिजिकल पर्सन ने भेजा है तो उसका एक्नॉलेजमेंट आएगा, है ना. एनी कंडक्ट ऑफ एड्रेसी सफिशिएंट टू इंडिकेट टू द ओरिजिनेटर दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज बीन रिसीव्ड. नाउ वेयर ओरिजिनेटर हैज स्टिपुलेटेड that the electronic record shall be binding only to receipt of acknowledgement of such electronic record by him, then unless acknowledgement has been received the electronic record shall be deemed to have been never sent by originator. So those are the basic points कि अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता कि ओरिजिनेटर के साइड से वो मैसेज गया था. हाँ, एक्सेप्ट कि मैं सेंड में बताता हूँ, बट स्टिल एज वी नो कि जो ईमेल सिस्टम है दैट इज नॉट द गारंटीड मोड ऑफ डिलीवरी ऑफ द मैसेज. आई कैन से कि आई हैव नेवर रिसीव्ड सच ईमेल, या दैट ईमेल माइट वेंट टू स्पैम जो मुझे कभी दिखा ही नहीं. So when originator has not stipulated that the electronic record shall be binding only on the receipt of acknowledgement, the acknowledgement has not been received by the originator within the time specified or agreed. If no time has been specified or agreed to within a reasonable time, then the originator may give a notice to addressee stating that no acknowledgement has been received. बराबर है. मतलब अगर मैंने ईमेल भेजा आपने एक्नॉलेज नहीं किया तो मैं वापस रिमाइंड करूंगा कि प्लीज सेंड मी एन एक्नॉलेजमेंट फॉर दिस ईमेल, है ना. तो जब तक आप एक्नॉलेजमेंट नहीं सेंड करेंगे मैं रीजनेबल टाइम में आपको ये मैसेज अपडेट जो है वो भेजते रहूंगा जब तक आप मुझे एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजते. और उसमें आपको क्या बोला है देखो, इफ नो एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड विद इन अ गिवन टाइम लिमिट he may give a notice to an addressee treat that the electronic record as though it has never been sent, है ना. Now following are the question pertaining electronic message like identify the originator, email message recipient कौन है, identify the message feed into the computer for transmission by the originator and with the message has been received by the addressee, the content क्या थे उसके, वो सब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं. Now pieces of evidence relevant for the originator. As you can see, the author's statement of images, that is the original to himself. Witness the statement, if any, who is having the knowledge of the content of e-messages in the question of the addressee. Proof of email address from where e-messages was sent to the addressee. Acknowledgement, if any, from the email service regarding the confirmation that the message has been sent to addressee's email address. Acknowledgement, if any, if the receipt of the email. अब देखो ये बहुत बेसिक से पॉइंट है, there is nothing much to explain out here, है ना. काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ओके मुझे एक्नॉलेजमेंट मिला नहीं मिला तो मैं वापस बोलूंगा. सो ये सब है. यूज लॉग मेंटेन विद द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर, जहाँ पे हम लोग बताएंगे कि ओके ये कुछ मैसेजेस आपको मिले थे नहीं मिले थे, है ना, जिसमें हम लोग बता सकते हैं कि ओरिजिनेटर से कौन सा ईमेल भेजा हुआ है और वो ईमेल अगर बाउंस बैक नहीं हुआ है दैट मींस आपको वो ईमेल डिलीवर हुआ ही है ना. नेक्स्ट इज पीस ऑफ एविडेंस रेलेवेंट टू एड्रेसी. Proof of email address of originator through a document, if any, like letter where the originator has mentioned his email address. The oral evidence of a person who may be aware of the email address. Then the proof of identification of the originator through the user's log maintained with the network service provider. log मतलब डायरी होता है जिससे हम लोग बता सकते हैं कि ओके ये कंप्यूटर से इतने ईमेल यहाँ से ट्रैवल हुए थे, है ना, या फिर यहाँ पे रिसीव हुए है कुछ डेटा, वो हम लोग बता सकते हैं. एविडेंस ऑफ द फैक्ट
that the e-message has been shown in the email account of the addressee having been sent from the email address of the originator itself. So ये सारे आपके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं जिसके बेस के ऊपर वी कैन प्रूव समथिंग. एक्नॉलेजमेंट मिलना, दैट्स वन थिंग. एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं मिला है तो हम लोग नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर के पास जो रिसिप्ट होंगे या लॉग्स होंगे वो यूज कर सकते हैं. So as you can see, as per the section 88A, presumption as to electronic messages, the court may presume that an electronic message forwarded by the originator through an electronic mail server to the addressee to whom the message was sent or to be addressed, और वो मैसेज जो है वो आपको भेजा हुआ है और उसका मेरे पास सेंट रिपोर्ट रहेगा. जैसे आप देखो, वी यूज GMAS. Okay, this is the facility of Gmail का फैसिलिटी है GMAS फॉर सेंडिंग मास ईमेल्स. तो अब ये ऑफिशियली हम लोग यूज करते हैं फॉर सेंडिंग स्मॉल नंबर ऑफ ईमेल ऑल्सो आई कैन यूज दिस. अब इसका बेनिफिट क्या होता है पता है आपको? एक स्टैटिक रिपोर्ट आता है यहाँ पे, और वो स्टैटिक रिपोर्ट जो है वो क्या होगा कि डिटेल में मुझे बताएगा कि टोटल मैंने कितने ईमेल भेजे हुए हैं, उसमें से कितने ईमेल हो गए, कितने ईमेल सेंड नहीं हुए, और जो ईमेल सेंड हुए हैं उसमें से कितने लोगों ने वो ईमेल एक्सेस किया, ये भी आपको बताता है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब अगर आप एक ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर कोई एक ईमेल अकाउंट अगर यूज करता है ना, तो वो टाइम पे दिस टाइप ऑफ डिटेल्स आर वेरी मच रिक्वायर्ड कि आपने ईमेल भेजा हुआ है. समटाइम्स पीपल माइट रिफ्यूज कि उनको कोई ईमेल नहीं मिला हुआ है, तो वो टाइम पे आप ऐसे सर्टन जो डिटेल्स है ना वो बता सकते हैं कि आपको ये ईमेल मिला है, नहीं मिला है. अगर नहीं मिला है तो उसका रीजन क्या है, मिला है देन दैट्स परफेक्ट. गेटिंग? सो ये पूरा एक आपको कैंपेन रिपोर्ट जो है ना वो मिलता है जो आप बहुत इजीली रख सकते हैं. GMAS रिपोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं. ओके, सो वो GMAS रिपोर्ट की अगर हम बात करोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स मिलते हैं जिसमें वी कैन से कि ओके दिस आर द डिफरेंट रिपोर्ट्स विच वी हैव रिसीव्ड, और उसमें इतने ईमेल आईडी जो है वो हम लोगों को मिल गए, इतने ईमेल एड्रेसेस जो है वो हम लोगों को नहीं मिले हैं. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है. तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे फिलहाल जो केस देखा हम लोगों ने, वो केस के बेस के ऊपर वी कैन से कि कौन से ईमेल एड्रेस आपको मिले, कौन से ईमेल एड्रेसेस आपको नहीं मिले. ओके, ये पूरा एक रिपोर्ट जनरेट होता है. इफ आई जस्ट इफ आई शो यू सच रिपोर्ट, तो इट लुक्स लाइक okay, I'll just show you one of such kind of a report. Just 1 minute. Okay, मैं वो रिपोर्ट आपको बताता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ. टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पार्ट. ओके, I'll just show you how that report looks like. Just 1 minute. बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए. वी हैव सम फैसिलिटी विच इज़ कॉल्ड एज GMAS, दैट इज़ द पेड फैसिलिटी. आप फ्री में उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्री में उसका एक लिमिटेशन रहता है कि एट ए टाइम आप एक लिमिट से ज़्यादा ईमेल्स जो है वो सेंड नहीं कर सकते. और पेड वर्जन जो रहता है उसमें आप बहुत सारे ईमेल्स एक साथ सेंड कर सकते हैं. और दूसरी बात कि कितने ईमेल सेंड हुए, कितने ईमेल सेंड नहीं हुए, और अगर कोई ईमेल अगर सेंड हुए है तो वो ईमेल किसने एक्सेस किए नहीं किए, ये सारे पॉइंट्स जो है ना ये भी आपको यहाँ पे पता चल जाता है. तो वो भी एक बहुत बेनिफिशियल चीज़ होता है कि ओके आपको ये ईमेल गारंटी रिसीव हुआ ही है, क्योंकि हम लोगों को वो GMAS के नोटिफिकेशन में बता रहा है. दैट इज द प्रूफ. वन कैन नॉट डिनाई कि ओके ये ईमेल मुझे मिला ही नहीं है. गेटिंग? जैसे अगर नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि पीपल यूज टू डिनाई कि मुझे ये ईमेल नहीं मिला हुआ है, तो वो टाइम पे वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस, राइट? कि आपको अगर नहीं मिला है तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं बोल सकता कि आपको वो नहीं मिला है तो नहीं मिला है, ठीक है, मैं वापस रीसेंड करूंगा. लेकिन अगर टेक्निकली अगर मुझे प्रूफ करना है
तो वो टाइम पे मेरे पास क्या दूसरा ऑप्शन होगा, है ना। तो वो ऑप्शंस जो है वो हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। सो इफ आई जस्ट शो यू वन कि हाउ इट लुक्स, जस्ट 1 मिनट। एक पूरा स्टेटिस्टिकल रिपोर्ट आता है, आई विल शो यू दैट रिपोर्ट। सो जस्ट 1 मिनट, मैं वेर आई ऑफिशियली यूज, मैं अपना रिपोर्ट आपको फेच करके बता रहा हूँ। सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया दैट हाउ इट लुक्स लाइक। ओके, okay, so here it is. As you can see this PDF file, I hope this is visible. So if you notice, I have sent number of emails, okay, from my official email ID. So as you can see from here, I can get the report, okay, view report option जो आपका होता है। From this view report option I can get the detail, कि the official detail कि कितने ईमेल रिसीव हुए हैं, कितने ईमेल मैंने सेंड किए। सो एज यू कैन सी टोटल ईमेल विच आई हैव सेंट इज 49, 2 minutes एंड समटाइम्स इट टुक। टोटल जो ईमेल सेंड हो गए सक्सेसफुली दैट इज 49। बाउंस अगर हुए कोई दैट इज 0, ओके। अदर नोट्स नथिंग इज देयर। तो टोटल ईमेल एड्रेस कितने हैं वो सब आएगा। इसके बाद में इफ यू नोटिस कि सेंडिंग स्पीड आपका क्या था, ओपन रेट क्या है, ओपन रेट इज 51%, मतलब जो भी मैंने भेजा है वो आपने ओपन किया हुआ है। रिप्लाईज फिलहाल ये जो भी ईमेल मैंने सेंड किया उसमें रिसीव्ड या ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ है, बराबर है। अब इसमें से कितने लोगों ने वो ईमेल पे क्लिक किया हुआ है, कौन से ब्राउजर से क्लिक किया हुआ है, ऐसा पूरा एक CSV रिपोर्ट आपको आता है विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दैट इज वॉट वी आर डिस्कसिंग हियर। I hope this is clear. So यहाँ पे if you notice this is the same thing which is provided at this point, that is section 88 resumption as electronic record, GMAS का जो मैंने आपको example दिया, that is one thing which we can use. Time and place of dispatch and receipt of electronic message. अब देखो बहुत बार ये हो सकता है कि मैंने जो आपको email send किया, ठीक है, ये जो point है ये क्या बता रहा है, as per section 13 मैंने आपको कोई ईमेल जो सेंड किया हुआ है वो ईमेल वो जो ईमेल है वो सपोज आया हुआ है आपको, मैंने आपके हेड ऑफिस पे भेजा है, ठीक है। हम लोग के पास मल्टीपल हेड ऑफिस है, सॉरी मल्टीपल हेड ऑफिस नहीं, मल्टीपल ब्रांचेस है। अब आपका एक ऑफिस जो है वो मुंबई में, सेकेंड ऑफिस दिल्ली में, है ना, एंड थर्ड ऑफिस सपोज बैंगलोर में, ऐसे मल्टीपल ऑफिसेज है आपके। अब मैंने आपको ईमेल जो भेजा है वो मुंबई का आपका जो हेडक्वार्टर है यहाँ पे भेजा है, लेकिन आपने उसको एक्सेस किया एट दिल्ली। मैंने सेंड किया मुंबई के हेड ऑफिस पे, फ्रॉम मुंबई ओनली। आपने रिसीव कहां पे किया, यू हैव रिसीव्ड इट एट दिल्ली ऑफिस, बराबर है। यहां पे आपने उसको रिसीव किया। सो यहां पे क्या बोला है कि आपने एड्रेस कहां पे किया था, मैंने तो हेड ऑफिस पे एड्रेस किया था, लेकिन आपने रिसीव दिल्ली पे किया, लेट्स सपोज। सो यहां पे आपको क्या बोला है, इफ द एड्रेसी हैज डेजिग्नेटेड अ कंप्यूटर सोर्स फॉर द पर्पज ऑफ रिसीविंग, नाउ रिसिप्ट अकर्स एट द टाइम व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर द डेजिग्नेटेड कंप्यूटर सोर्स। मैंने आपके ऑफिशियल कंपनी के आईडी पे भेजा है। अब वो आईडी आप कहां पे एक्सेस कर रहे हो, दैट्स नॉट माय कंसर्न, है ना। सो वो यहाँ पे दिया है। सो इफ द ओरिजिनेटर और एड्रेसी हैज मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस, जो मैंने आपको बताया, तो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जो है ना वही कंसिडर होगा कि वहां से मोस्ट ऑफ ईमेल जो है आपके रिसीव होते हैं, भले आपने कहीं पे भी एक्सेस किया रहेगा। शेल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इफ द ओरिजिनेटर और एड्रेसी डू नॉट हैव प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आपका घर से काम चल रहा है, तो वो टाइम पे आपका रेसिडेंशियल एड्रेस जो रहेगा, बराबर है, वही आपका प्लेस ऑफ बिजनेस कंसिडर होगा। यूजुअली अ प्लेस ऑफ रेसिडेंट इन रिलेशन टू बॉडी कॉर्पोरेट मीन्स द प्लेस वेर इट रजिस्टर्ड। तो
तो आपका कंपनी जो लोकेशन पे, जो एड्रेस पे आपका कंपनी रजिस्टर्ड है, जिसके बेस के ऊपर आपको लाइसेंस मिला हुआ है टू रन एनी बिजनेस, दैट्स विल कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ बिजनेस इन दैट केस। और हम लोग वहां पे नोटिस भेजेंगे, वहां से आपका केस चलेगा। क्लियर है? सो आई होप दिस आर द पॉइंट्स विच आर वेरी क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब इसके आगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज 8.6। ओके, ये हम लोग एक छोटा सा ब्रेक के बाद में वापस कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यू विल टेक 5 minutes ब्रेक, देन अगेन विल कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में।